Morning students, today we'll start another topic, that is fresh topic, possessive case of noun, and this is probably the last topic of noun, possessive case of noun. We are going to start this possessive case of noun, and this is all about position of noun. We will show position of noun through two ways we'll be making position of noun. One is apostrophe and s, another one is of. We'll be using these two things to these two things to be used to make possessive case of noun. Apostrophe and s to be used with living things, while of to be used with non-living things. Apostrophe s we would use with the living things. The position should be of living things. So here we have got Farhan's pen, and then you would remember that Farhan is what? A living being, a living thing. So that's why we have used what? Apostrophe s. We cannot use here pen of Faraz. See, there are two different things. One is spoken and other one is written. Okay, it will be okay in spoken if you are using it, but whenever it comes to written and whenever it comes to grammar, you are strictly forbidden to use of phrase here with living beings, living things. Farhan is a living, that's why we have used apostrophe and then is. Okay, sometimes क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि apostrophe बीच में दे देते हैं, बिल्कुल इस तरीके से कर देते हैं, फरहान, एंड देन नीचे अपॉस्ट्रॉफी दे के इस कर देते हैं, फरहान्स. ये दिस वे इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ये तरीका एक गलत है. या फिर इस तरीके से क्या करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी फरहान्स हमने इस दे दिया, फिर बाद में ऊपर क्या कर दिया, अपॉस्ट्रॉफी दे दी. ये भी तरीका गलत है. ये तरीका सही होगा, इनके कुछ अलग से रूल्स हैं, लेकिन यहाँ पर नाउन के साथ बिल्कुल ये तरीका आपका, बल्कि आई वुड से दैट जो आपका प्रॉपर नाउन है उनके साथ ये तरीका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा. यहाँ पर फरहान इज़ अ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के साथ आप यूज़ करते हैं, देन वी विल स्टडी द डिफरेंट रूल्स अहेड. So here Fiza's bag, and then is living being, living thing. That's why we have used was apostrophe s, and then cock's legs. Then we have got cock, and then apostrophe s, and then legs. So cock is certainly a living being, and then tree's leaves. So a tree's leaves, we have used tree, and then apostrophe s, then leaves. So here from this side you can find windows of room. Rooms window, you cannot do it rooms window. आप rooms window नहीं कर सकते, such as rooms window आप नहीं कर सकते, because room is a non living thing. एंड देन पोजीशन किसकी है यहाँ पे, पोजीशन जो वो विंडो है वो किसकी है, रूम की है. यहाँ पर पोजीशन किसकी है, जो पेन है वो किसकी है, फरहान की. हालांकि फरहान इज़ अ लिविंग थिंग एंड देन रूम इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. अब अगर जो पोजीशन इटसेल्फ है उसको आप देखेंगे, एक विंडोज़ है, दूसरी क्या है, पेन है, ये दोनों क्या होंगे, नॉन लिविंग होंगी. जाहिर सी बात है, ये नहीं, जो पोजीशन ओनर ऑफ पोजीशन है वो लिविंग थिंग होना चाहिए. ऑनर ऑफ पोजीशन का मतलब, यहाँ पर पोजीशन पेन है, ऑनर उसका क्या है, फरहान. दिस फरहान शुड बी living thing, and that's only where we would be using apostrophe s. Apart from that, windows of room. Okay, you can use windows of room, windows of the room, and then you cannot use rooms windows, and this way is entirely incorrect. This is wrong path to be used. Okay, to be taken. Cap of a pen, pen का जो cap होता है, this लाइक इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं कैप, एंड देन यू कैनॉट यूज़ पेन्स कैप. यू वुड यूज़ सिंपली कैप ऑफ अ पेन, बिकॉज पेन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, एंड यू वुड यूज़ ऑफ विद दैम. कैप ऑफ अ पेन, पेन्स कैप आप नहीं कर सकते, अपॉस्ट्रॉफी एस इनके साथ नहीं लगा सकते. सो लेग्स ऑफ चेयर, यहाँ पर एक आपका एक एक्सप्रेशन था, कॉक्स लेग्स. तो कॉक वॉज ए लिविंग, एंड देन चेयर इज़ व्हाट, नॉन लिविंग. दैट्स वाई वी वुड यूज़ लेग्स ऑफ चेयर. लेग्स ऑफ चेयर हम करते हैं, एंड देन कॉक्स लेग्स करते हैं. कॉक इज़ लिविंग, एंड देन चेयर आपका क्या है, नॉन लिविंग है. दैट्स वाई दिस इज़ द डिफरेंस. सो द पेजेस ऑफ अ बुक, द पेजेस ऑफ अ बुक, एक बुक के डिफरेंट पेजेस हैं, देयर यू वुड यूज़ व्हाट, ऑफ
बिकॉज बुक इज़ नॉन लिविंग। एंड देन बुक्स पेजेस अगर ये से हम कर देंगे तो ये सेंटेंस आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। एंड देन यू शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। फर्स्ट हमने रूल पढ़ा, फर्स्ट केस हमने पढ़ा कि जो बेसिक केस है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन अपॉस्ट्रॉफी एस एंड ऑफ, where to use of and where to use apostrophe s. I hope this is quite clear now, because wherever you find non-living things and the owner of possession should be non-living thing, there you are supposed to, there you must use of. But you know, in the contrast, in the very other hand, on the very other hand, if you find the owner of possession is, the owner of possession is Farhan, Fiza, Coke, and then we have got tree. The owner of possession, see this is possession itself, pen, bag, legs, and then leaves, these are possessions. And then this part is what, the owner of possession. This owner of possession must be living thing. Whenever these owner of possessions are living beings, and you are supposed to use apostrophe s. But whenever these owner of possessions are non-living things like room, pen, chair, book, these are owner of the possession, and their possession is window, cap, legs, pages. So these are what, non-living things there. That's why you would use of here, of again, this is off, and you will find off there. So this way you will find incorrect. Books pages would be incorrect. The pages of books होना चाहिए जो कि अच्छा। सो नाउ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे यू विल फाइंड डिफरेंट थिंग्स। एक हमारे पास क्या है, अपॉस्ट्रॉफी एस है। तो कभी कभी क्या होता है, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी हम लगा देते हैं, एस नहीं लगाते, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी। कुछ नाउन्स आपके आएंगे जिसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे, या फिर क्या कर देंगे, पहले एस दे देंगे, फिर ऊपर क्या कर देंगे, आप अपॉस्ट्रॉफी दे देंगे। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि फरहान एस पहले लगा दें, ऊपर हम क्या कर दें, बाद में अपॉस्ट्रॉफी दे दी, जो कि आपका प्रॉपर नाउन में गलत हो जाएगा, लेकिन कॉमन नाउन में उसके कुछ रूल्स हैं कैसे वो यूज़ होंगे। एंड देन वील बी स्टडिंग अहेड। तो ये तीन चीज़ें हैं, एक आपकी क्या है, एस आएगा, फिर अपॉस्ट्रॉफी आएगी, एंड देन अपॉस्ट्रॉफी आएगी, एंड थर्ड थिंग आपकी क्या है, अपॉस्ट्रॉफी आएगी फिर एस आएगा। सी यहाँ पर एस पहले आता है, अपॉस्ट्रॉफी बाद में आता है, यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी पहले आती है, एंड देन एस बाद में आता है, यहाँ पर एस नहीं आता, सिर्फ आपकी अपॉस्ट्रॉफी आती है। सो देयर यू वुड यूज़ व्हाट, एंड देन हम अब रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। अब रूल्स आपके डिसाइड करेंगे ये चीज़ें, ऑफ नहीं डिसाइड करेगा। ऑफ वी हैव डन विद ऑफ। ऑफ आप कहाँ यूज़ करेंगे, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके साथ आपने ऑफ यूज़ करना है। अब हम यूज़ करेंगे ये तीन चीज़ें, एस अपॉस्ट्रॉफी और अपॉस्ट्रॉफी एस, these three things where to be used, these three things, so we are moving to the next rule simply, that is rule number 1, all singular nouns and plural irregular nouns takes apostrophe and then s। पहले अपॉस्ट्रॉफी आएगी एंड देन एस आएगा। सारे आपके सिंगुलर नाउन, सारे सिंगुलर नाउन्स, कोई भी सिंगुलर नाउन आपका वो सिंगुलर नाउन, प्लूरल नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने ऑलरेडी हम सिंगुलर प्लूरल पढ़ चुके हैं, उनके रूल्स हमने पढ़े हैं, कुछ इरेगुलर थे, कुछ रेगुलर थे। इरेगुलर आपके जो प्लूरल हम बना रहे थे जिसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, वो आपके इरेगुलर थे। तो सारे आपके सिंगुलर नाउन्स एंड उनके अलावा प्लूरल किसके, सिर्फ और सिर्फ इरेगुलर के। अब सिंगुलर नाउन आपके सारे हो जाएंगे। हाँ, सारे का मतलब ये द चाइल्ड्स क्लब, तो आप क्या करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी पहले देंगे, ऊपर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी, एस आप पहले दे देंगे, एंड देन अपॉस्ट्रॉफी, सॉरी दिस इज व्हाट, अपॉस्ट्रॉफी पहले आएगी, एंड दिस इज हाउ अपॉस्ट्रॉफी वुड बी फर्स्ट एंड देन एस। दिस वुड बी लाइक चाइल्ड in this way, so child's club, and then a boy's homework, boy, and then apostrophe is homework, a boys, because this is singular, all singular nouns, man's hat, man, and then apostrophe is, apostrophe आपने ऊपर देनी है, नीचे नहीं देनी, hat, students copy, तो student singular noun है, and then आपने क्या करना है, apostrophe देनी है, and then हमने क्या किया, s का इजाफा किया, apostrophe s लगाए। अब दूसरी बात थी, एक तो आपकी कोई भी सिंगुलर नाउन्स हो, कोई भी सिंगुलर नाउन, उसके साथ आप क्या करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। अब आपके प्लूरल नाउन्स सारे नहीं, सिर्फ इरेगुलर प्लूरल नाउन्स। एक होते हैं आपके रेगुलर प्लूरल नाउन्स। रेगुलर आपके प्लूरल नाउन्स वो होते हैं, रेगुलर प्लूरल नाउन्स दैट मीन्स आरपी। आपके आरपी वो होते हैं जो कि किसी रूल की मदद से बने, एस लगाने से प्लूरल हो जाएं, या फिर ई एस लगाने से प्लूरल हो जाएं, या फिर आई ई एस लगाने से प्लूरल हो जाएं, या फिर वी ई एस लगाने से प्लूरल हो जाएं, जो कि हम रूल्स पढ़ रहे थे, वो आपके आर पी हैं, रेगुलर प्लूरल्स।
एंड देन IRP आपके कौन से होते हैं? IRP इरेगुलर प्लूरल्स। इरेगुलर आपके वो होते हैं जो कि एस की मदद से, ES की मदद से, IES की मदद से या फिर VES की मदद से आपके प्लूरल्स ना बने, उनको आप क्या कहते हैं? इरेगुलर। जैसे आपका मैन हो गया, मेंस प्लूरल नहीं होगा, MEN हो जाएगा। चाइल्ड है, चिल्ड्रेन हो जाएगा। गूज है, गीज हो जाएगा। ऑक्स है, ऑक्सन हो जाएगा। वुमन है, विमेन हो जाएगा। तो इस किस्म के जो आपके नाउन्स होंगे उनको आप क्या कहेंगे? इरेगुलर प्लूरल जो नाउन्स होंगे उनके साथ आप क्या लगाएंगे? सो यू कैन फाइंड हेयर चिल्ड्रेन्स पार्क। सो चिल्ड्रेन इज़ व्हाट? सिंगुलर होगा तो वैसे भी आप ये लगाएंगे, सारे आपके सिंगुलर होंगे, उनके साथ आप क्या लगा रहे थे? अपास्ट्रफी एस लगा रहे थे। एंड देन आपका प्लूरल होगा तो आप तो भी क्या करेंगे? अपास्ट्रफी एस। प्लूरल किसका? इरेगुलर नाउन्स का, रेगुलर नाउन्स का नहीं। ये जो रेगुलर आपके नाउन है, ये जो आपका बॉय है, अगर आप इसको क्या करेंगे? BOYS पहले प्लूरल करेंगे, फिर अगर आप अपास्ट्रफी यहाँ देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ देनी होगी, कैसे क्या करना होगा वो हम बाद में देखते हैं। एंड देन आपने सिंगुलर जो आपके इरेगुलर प्रोनाउंस होंगे, सॉरी नाउन्स होंगे, उनके साथ आपने अपास्ट्रफी AC देना होगा। लाइक चाइल्ड है तो आपने यहाँ पर क्या लिखा? चिल्ड्रेन। एंड देन अपास्ट्रफी एस, चिल्ड्रेन्स पार्क। मेंस टीम, मैन प्लूरल है, MEN। एंड देन हमने क्या कर दिया? टीम। एंड देन ऑक्सेंस हॉर्न्स, देन विमेंस टीम। तो ये जो आपके नाउन्स नज़र आ रहे हैं, देन इनमें से हमने क्या किया? विमेंस टीम, ऑक्सेंस हॉर्न्स, मेंस टीम, एंड देन चिल्ड्रेन्स, अपास्ट्रफी। ये सेम तरीका है। ऑल द सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल इरेगुलर नाउन्स के साथ हम अपास्ट्रफी एस का इजाफा करेंगे। एंड देन वो आपकी क्या हो जाएंगे? उनका केस क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव केस हो जाएगा। एंड देन पॉजिटिव केस आपका मुख्तलिफ है। पॉजिटिव केस में आपका क्या होता है? अपास्ट्रफी एस लगाते हैं आप, जबकि आपने प्लूरल में सिर्फ आपने अपास्ट्रफी नहीं यूज़ की थी। प्लूरल बनाने के लिए आपने अपास्ट्रफी नहीं यूज़ की थी, सिर्फ लास्ट रूल था उनमें जो कि आप पढ़ रहे थे, जहाँ पर सिंबल्स हों, लेटर्स हों, फिगर्स हों, उनके साथ आपने नंबर्स हों, उनके साथ आप क्या कर रहे थे? अपास्ट्रफी लगा रहे थे। बाकी सारे के सारे आप सिंगुलर प्लूरल बना रहे थे। इधर यू वर यूजिंग SES, IES, VES आर, या फिर आपके रेगुलर फॉर्म थे, या फिर कुछ के बन रहे थे, कुछ के नहीं बन रहे थे, लेकिन आपने अपास्ट्रफी वहाँ नहीं लगानी थी। बट यहाँ पर इन पॉजिटिव केस यू वुड बी यूजिंग अपास्ट्रफी। देयर इज़ अ वाइटल रोल ऑफ अपास्ट्रफी इन पॉजिटिव केस। सो पॉजिटिव केस इज़ दिस वे इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड देन आप क्या करेंगे? इनके साथ एक आपके सारे सिंगुलर नाउन, एंड देन प्लूरल नाउन्स के आपके क्या, जो प्लूरल नाउन आपके इरेगुलर के प्लूरल नाउन्स होंगे उनके साथ आप क्या करेंगे? अपास्ट्रफी एस लगाएंगे। एंड देन अब केस क्या बचता है? ये तो सारे हो गए आपके जो आपके रेगुलर, जो आपके सिंगुलर थे, सिंगुलर सारे आपके हो गए। देन प्लूरल किसके हुए? इरेगुलर के। अब रेगुलर के प्लूरल नहीं हुए तो हमारा नेक्स्ट रूल है, रेगुलर प्लूरल नाउन्स टेक ओनली अपास्ट्रफी। सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेंगे? अपास्ट्रफी लेंगे। जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर अपास्ट्रफी एस पढ़ा, अब हम ऊपर जा रहे हैं, सिर्फ अपास्ट्रफी, इसके बाद अपास्ट्रफी एस को हम देखेंगे। अच्छा, रेगुलर प्लूरल नाउन्स टेक ओनली व्हाट? apostrophe s, so only apostrophe, sorry, so it will take only apostrophe, and then apostrophe is something what, सिर्फ apostrophe। रेगुलर आपकी क्या है? प्लूरल नाउन। रेगुलर प्लूरल नाउन मतलब आपने अभी पढ़ा था कि एस जिसमें लगे, ES लगे, IES लगे, VES लगे, वो उनको हम जिनको नाउन्स को प्लूरल एस की मदद से बनाएं वो आपका रेगुलर हो जाएगा, या ES की मदद से, IES की मदद से वो। अब स्टूडेंट में को प्लूरल बनाने के लिए आपको सिर्फ एस लगाना है, देन आप क्या करेंगे? ऊपर अपास्ट्रफी दे देंगे। अब क्या करेंगे? हम पहले अपास्ट्रफी नहीं देंगे, यहाँ पर अपास्ट्रफी हमने नहीं देनी, बाद में देनी। वो इसलिए कि पहले हमने एस लगा दिया स्टूडेंट को प्लूरल करने में, स्टूडेंट था इसको हमने प्लूरल करने में एस लगा दिया, एंड देन हम अपास्ट्रफी कहाँ लगाएंगे? बाहर लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर अपास्ट्रफी को यूज़ किया, ऊपर से एस ऑलरेडी था, एस ऑलरेडी है, क्योंकि प्लूरल करने से वो यूज़ हो गया। अब दूसरी मर्तबा हम यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ अपास्ट्रफी, जो कि हम पढ़ रहे हैं, रेगुलर प्लूरल नाउन्स टेक ओनली अपास्ट्रफी। क्लियर? सी। देन बॉयज़ क्लब, बॉय को पहले हमने एस लगा के प्लूरल किया, एंड देन हमने क्या किया? क्या किया? दिस अपास्ट्रफी दे दी। देन ऊपर अगर आप देखें यहाँ पर बॉय, ये सिंगुलर था, बॉय पहले वाई एंड देन अपास्ट्रफी देन एस था, होमवर्क, ये सिंगुलर। हमें पता चलेगा कि अगर बॉय है अपास्ट्रफी एंड देन एस है तो वो क्या है? सिंगुलर है। अगर हमारा बॉय क्या है? बॉय है
एस लगा हुआ है, बाद में अपोस्ट्रोफी है तो वो प्लूरल है एंड देन उसकी पोजीशन है। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे जो लड़के हैं उनका क्लब। इसका मतलब क्या है, अ बॉयज़ होमवर्क, एक लड़के का होमवर्क है। यहाँ पर आप क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंपली स्टूडेंट्स पार्क, सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी पार्क। देन अगर हम कहें कि स्टूडेंट, इस तरीके से हम लिखें सिंगुलर एंड देन हम अपोस्ट्रोफी दें, देन इस दे दें स्टूडेंट्स कॉपी, दैट मीन्स किसी एक स्टूडेंट की कॉपी, ये भी सही होगा लेकिन उस रूल में चला जाएगा। सो बेबीज़ टॉयज़, बेबीज़ टॉयज़ जो कि हम पढ़ रहे थे, वाई को काट कर हम IES लगाएंगे एंड देन वो हमने प्लूरल किया पहले IES लगा के, एंड देन अब हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी ऊपर लगा देंगे। इस ऑलरेडी आ चुका है प्लूरल में, इसलिए दोबारा हमने इस नहीं देना, एंड देन आपका क्या हो जाएगा, सो दिस वुड बी बेबीज़ टॉयज़ एंड देन वाइव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन इसमें हमने क्या किया था, FE को काट के VES लगाया था रूल में, एंड देन दिस इज़ हाउ, वो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ हम अपोस्ट्रोफी देंगे, किसी एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एस आ चुका है प्लूरल बनाने में। एंड देन लेडीज़ हेड्स, सो लेडीज़ हेड्स, लेडी में भी हमने वाई को काट कर IES लगाया एंड देन हेड्स किया, तो अपोस्ट्रोफी हम बाहर देंगे, ऊपर देंगे, पहले हमने नहीं देनी इन नाउन्स के साथ। सो दिस इज़ हाउ, एंड देन हम फिर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, मेंस स्कूल ऑफ थाट, सॉरी दिस इज़ मेंस स्कूल ऑफ थाट, थॉट, एंड देन मेंस हमने क्या किया, मेंस स्कूल ऑफ थाट, ये आपका क्या होगा, सही होगा गलत होगा, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा सही। एंड देन बिकॉज दिस सेंटेंस मेंस स्कूल ऑफ थाट, मेन क्या है आपका, पहले प्लूरल है, प्लूरल किसका है, रेगुलर का नहीं है, इरेगुलर का, ऊपर यहाँ से हमने लिया था लाइक मेंस ट्रीज, ये देखें आप, मेंस टीम एंड देन वी हैव गॉट मेंस स्कूल। सो दिस इज़ हाउ, ये उसका सेंटेंस है। एंड देन हम क्या कर रहे थे, इसको रिव्यू कर रहे थे यहाँ पर लास्ट रूल के बाद, तो हम इस तरीके से इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को, इन पॉजिटिव केस को करेंगे।